Hello everyone, welcome to JH Smart Classes, perfect point to study. How are you all? Hope you all are fine. आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम आज बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे. जो बैलेंस शीट बनती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो सेम होती है बिजनेस फर्म की तरह. It is prepared after having prepared the income and expenditure account. Surplus or deficit of the income and expenditure account is transferred to the capital fund. The balance sheet shows the assets, liabilities and capital fund. बैलेंस शीट जो है वो एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के बाद बनाते हैं, जिसमें हमें सरप्लस और जो डेफिसिट होता है उसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर. Capital fund is also known as general fund, corpus fund, and accumulated fund. Where opening balance of a capital fund is not given, it is determined by preparing balance sheet. Opening capital fund is excess of assets over liabilities in the beginning of the period. Capital fund equal to total assets minus total liabilities. Example, on 1st April 2021, assets and liabilities of the Young India Club are as follows. इसमें से निकालना है कैपिटल फंड, निकालना है 2021 का. बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया क्लब एज एट 1st April 2021. लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 एंड उसके बाद एसेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000, फर्नीचर हम लिखेंगे एसेट साइड में 65,000, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 2 लाख का. एसेट साइड का टोटल करके लाइबिलिटी साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 2,95,000 जो कि हमारा कैपिटल फंड होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं. तो हमें ये कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में ध्यान में रखने होते हैं. फर्स्ट इज डिटरमाइन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. Fixed assets are as existing in the previous year's balance sheet should be adjusted for sale during the year. Purchase during the year and depreciation, the adjusted amount is shown in the balance sheet. It should be noted that if during the year a part of the assets has been sold, then the book value of the asset sold is deducted from that assets account and the difference between the sale proceeds and the book value is shown as a gain, profit or loss in the income and expenditure account. Next is loan. Loan taken, if any, is shown in the receipt side of the receipts and payments account, and the amount less any repayments which will be in the payment side shown in the liability sides of the balance sheet. Next is advance. Advance given, if any, is shown in the payment side and recovery of advance on the receipt side. Net amount is shown in the asset side of the balance sheet. Next is investment. Investment made is shown in the payment side of receipts and payments account, and investment realized in the receipt side. They are shown in the assets in the asset sides of the balance sheet. Any addition is added to and sale of investment is deducted होगी balance sheet में. Next is adjustment related to expenses and income. Adjustment made in expenses and incomes before they are shown in the income and expenditure account are also shown in the balance sheet. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन जो होती है वो हम लाइबिलिटी में करते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में. नेट इनकम और इनकम रिसीव्ड एडवांस जो हम लाइबिलिटी में शो करते हैं. एक्रूड इनकम और हम उसको एसेट में शो करते हैं. नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज आर एग्जिस्टिंग इन द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट शुड बी एडजस्टेड फॉर पेमेंट मेड अगेंस्ट देम. This information will be available in the payment side of the receipts and payments account. Net amount is shown in the balance sheet. Next is cash and bank balance. Cash and bank balance at the end of the year in the receipts and payments account is shown in the asset side of the balance sheet. Bank overdraft is shown in the liability side of the balance sheet. Next is surplus or deficit. Surplus or deficit as determined from the income and expenditure account is transferred to the capital fund. Surplus और deficit जो होता है जो income and expenditure account से निकलता है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल फंड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले तो हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बैलेंस शीट एज एट, और लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे हम कैपिटल फंड, जनरल फंड, कॉर्पस फंड, एक्यूमुलेटेड फंड. 3 में से 4 में से कुछ भी लिख सकते, सबका मतलब एक ही होता है. फिर लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, ऐड करेंगे सरप्लस और लेस करेंगे डेफिसिट को अगर होगा तो, और ट्रांसफ़र कर देंगे हम उसको अदर फंड में. बिल्डिंग फंड देखते हैं, अगर बिल्डिंग फंड दिया हो तो
ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इसको भी हम ऐड करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड में। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं स्पोर्ट्स फंड। ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, ऐड करेंगे डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, इन्वेस्टमेंट, इन सब को हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड, करंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे हम लेस करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इज हमारा एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हम फिक्स एसेट लिखेंगे, बिल्डिंग लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस जाएगा, उसके बाद ऐड करेंगे उसमें डोनेशंस, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, फर्नीचर को ऐड करेंगे, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस एडिशंस लेस करेंगे, सेल डेप्रिसिएशन का, करंट एसेट्स में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, ये सारा हम एसेट साइड में डालेंगे बैलेंस शीट में इन एनपीओ में। ये था आज के लिए, होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.